Hi, good evening. Confirm audio. We are going to solve questions on surds and indices. A lot of theory has been covered earlier. Only one concept remains, that is about finding square roots of surds. So let us start the session. So what you're looking at is a question from ZAT. ZAT is a CAT level exam. Read, try, you have 2 minutes. What is being said is x is root of one of these equations. इनमें से किसी एक equation का root है. What is the root? When you put that value of x, say x is equal to a, you put that value and the equation becomes zero. That is what we call a root. Equation zero हो जाना चाहिए for it to be a root. But you will find it very difficult to put this value anywhere. ये value आप कैसे put करोगे? इस पूरे का आप क्यूब निकाल सकते हो क्या? So such questions have appeared in CAT as well, couple of times. How do we approach such questions? थोड़ा ध्यान दो. See, when I tell you that this is a root, you could think reverse. You could think reverse and perform whatever power is given to you. See here, the power in every equation is a cube. I am rewriting this. मैं इसको rewrite कर रहा हूं. देखो, if it makes sense. I am rewriting this as x minus 2 is equal to, what is this? This is 2 का cube root. This is what we call a surd. और ये क्या है? ये 2 का square है and then a cube root. So 2 का square then a cube root. This is what we have here in the given equation. Now I'm performing cube on both sides. I'm performing cube on both sides. If I perform a cube on this side, it becomes x cube minus 3 into 2 into x square. That is 6x square. 3 into 2 square into x. That is 12x minus 2 cube, which is 8. All I'm doing is I'm applying the formula of a minus b whole cube. I'm applying this formula here. On the right side, I will do the same thing. This is a and b. I have on the right side, I have a plus b. I have two numbers added. I have a cube. This is a. So when I take a cube of this, it becomes 2. When I take a cube of this, it becomes 2. Then 3 into square of this number into this number. Then 3 into square of this number into this number. And finally, cube of this number. What is cube of this number? 3 and 3 cancels. 2 square. 2 square is 4. So let me rearrange whatever I can. I'll shift this value 2 and this value 4, which is equal to 6 on the left side. I have got for you x cube minus 6x square
plus 12x. This 4 and this 2 becomes minus 6. This becomes minus 14. On the right side, what do I have for you? See, 3 is common. I'm taking 3 common. This and this will add up. The power will add up. 2 to the power 4 by 3. This and this power will add up. 2 to the power 5 by 3. Which I can rewrite. See, 4 by 3. 4 by 3 is nothing but 1 plus 1 by 3. And 5 by 3. 5 by 3 is 1 plus 2 by 3. So in both cases, power 1 is common. See, please understand this part will look tricky to you. This is basically 2 common. This is 2 common. This becomes 6. Now you remember what is this equal to? Look at your first equation. What is this equal to? It's equal to x minus 2. So your entire equation I'm writing on the right side. This entire equation on the right side becomes 6 times of x minus 2, which is 6x minus 12. On the left side, what do we have? We have x cube minus 6x square plus 12x minus 14. इसको इधर भेजेंगे, it will become x cube. ये वाला 6 will come here, minus हो जाएगा. And this minus 12 will come on to this side and become plus 12. हो जाएगा minus 2 is equal to 0. Do you see this equation anywhere? Do you see this equation anywhere? क्या दिख रहा है आपको x cube minus 6x square plus 6x minus 2? No, none of these. So this value is a root of none of these among the options, but this is the root of this given equation. This is a CAT level question. You might come across questions like, let us say x is equal to, x is equal to 5 plus 3 root 2. They'll ask you ये किसका root है? They'll ask you ये किसका root है? देखो यहाँ पर cube root था. There was a cube root. So I performed a cube. यहाँ पे square root होता. I'll perform a square. I'll shift 5 on this side. I'll perform a square. Job done. You can see such questions in CAT and maybe in your mocks as well. Because the power was a cube root. I performed a cube on both sides. अगर power होता square root, तो I would have performed a square on both sides. None of these is the answer. Look at the final equation. Clear है ये? This is clear. Confirm. See, I took out 2 common from this. Equation. जो आप last में doubt बोल रहे हो. This is see, look at the power. Power is 4 by 3. 4 by 3 is 1 plus 1 by 3. जब बेटा power को ऐसे लिखते हैं ना, it can be separated. This can be written as 2 into 2 to the power 1 by 3. Similarly, the 5 by 3, I can write 5 by 3 as 1 plus 2 by 3. 1 plus 2 by 3. तो I am separating those powers. और फिर यहाँ से 2 common ले लिया.
तो ये वाली जो वैल्यू है, लुक एट द टॉप इक्वेशन, इसमें से 2 को यहाँ भेज दो। ये जो 2 है, लुक एट द टॉप इक्वेशन, इफ यू सेंड 2 ऑन द अपोजिट साइड, x माइनस 2 बन जाएगा, और राइट साइड में इट इज 2 टू द पावर 1/3 और 2 टू द पावर 2/3। ये वाली वैल्यू x माइनस 2 के बराबर है। x माइनस 2 को रिप्लेस कर दिया, इट बिकम 6 इंटू x माइनस 2, 6x माइनस 12, और उसको रीअरेंज कर दिया। दैट्स ऑल। बाकी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, बाकी द फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब। Now, how do we find square root of surds? तो ये डेरिवेशन ना रिवर्स में अप्लाई होती है। I'll show the derivation, then I'll go for the final outcome. कभी भी आपसे कहा जाएगा find a square root like this. There will be a number a, there will be 2 times of root over b. आपसे कहेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये देखो ऐसा, और there will be a number a minus 2 times of square root b. In both these cases, try to understand and observe. This 2 has to be there. बिना इसके जनरल फॉर्म नहीं बन सकता, बिना इसके स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो व्हाट वी एंड अप डूइंग इज वी ट्राई टू राइट दिस एज एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड दिस एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर्स। ये अगर x प्लस वाई है तो ये x इंटू वाई होना चाहिए, आपको नंबर ढूंढने पड़ेंगे वैसे। दिस इज x प्लस वाई, दिस इज x इंटू वाई। तो जो रूट ओवर की वैल्यू होती है, जो भी x और y में से बड़ा वैल्यू है, कीप इट इन फ्रंट। ये रूट ओवर का वैल्यू है। बड़ा वैल्यू क्यों सामने रखने कह रहा हूं मैं आपको, ताकि ये नेगेटिव ना हो जाए। जो सेकेंड रिजल्ट है, इट डज नॉट टर्न इनटू अ नेगेटिव। लेट अस से आई कम अक्रॉस अ क्वेश्चन, मैं इसका डेरिवेशन में कराऊंगा, रिवर्स डेरिवेशन से कहते हैं। लेट अस से आई कम अक्रॉस अ क्वेश्चन रूट ओवर 7 प्लस 2 रूट 12। ये कैलकुलेट करने आपसे कहा गया। 7 इज व्हाट? 7 इज 3 प्लस 4, 12 is what? 3 into 4. ये 2 होना जरूरी है। The root over will be root over 4 plus root over 3, which is 2 plus root 3. ये आपका आंसर है। Let me take one more example. Let us say you come across root over 15 minus 2 root over 36. 15 क्या है? 12 plus 3. 36 क्या है? 12 into 3. अब मुझे पता, आप बोलोगे सर इट इज इक्वल टू 6 बाहर आ जाएगा। 15 माइनस 12 विच इज रूट 3। देखो अभी आप स्क्रीन पे ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 12 माइनस रूट ओवर 3। अब आप इसको अरेंज भी करोगे ना, दिस इज व्हाट, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 रूट 3 माइनस रूट 3 विच इज रूट ओवर 3। देखो व्हाट इज 36, 6 आ जाएगा बाहर, 15 माइनस 12 3। तो देखो आंसर दोनों साइड से मैच कर रहा है। सो द मेथड इज परफेक्टली फाइन। कभी भी स्क्वायर रूट लेना हो आपको सर्ड का, ये खुद एक सर्ड, दिस एंटायर थिंग इज अ सर्ड, उसमें 2 का होना जरूरी है। 2 नहीं है तो कॉमन निकाल के लगाओ, 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लगाओ, 2 हैज टू बी देयर। अब इसका डेरिवेशन क्या, देखो मैं कोई भी एक प्रूव कर देता हूं, मैं आपको सेकंड रिजल्ट प्रूव कर देता हूं। I am saying reverse derivation. I am starting with a result and I am going to prove that they are equal. How? अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस 2 रूट बी, रूट ओवर कट गया, इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। सो सी हियर इज द वर्किंग ऑफ इट। What we say is the integer part must match the integer part and surd part must match the surd. ये integer part है a, तो a किसके बराबर होना चाहिए, x प्लस वाई के, और ये सर्ड पार्ट है, रूट ओवर मीन सर्ड, b किसके बराबर होना चाहिए, x इंटू वाई के। देखो सो आई एम थिंकिंग रिवर्स कि अगर ये रिजल्ट है तो मैं प्रूव करता हूं ये रिजल्ट कहां से आया।
Now can there be more variables? Yes, क्योंकि हम स्क्वायर करके परफॉर्म करके आंसर ला रहे हैं. देयर कुड बी 3 टर्म्स ऑल्सो. ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लगेगा, और देयर कुड बी ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. एग्जाम्पल लिख लो, डेरिवेशन लिख लो, राइट इट डाउन समवेयर. टू हैज टू बी कॉमन ऑलवेज. अगर टू नहीं है कॉमन तो दिस विल नॉट वर्क. A must be the addition of two numbers and B must be multiplication of two numbers. प्लस माइनस सेम नहीं, बाहर प्लस माइनस नहीं करना बेटा. यहां माइनस है तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस होगा. दो दो प्लस माइनस नहीं लगाने कहीं पे. दैट इज रॉन्ग. दैट इज इनकरेक्ट. चलो, सो there are 4 examples on the screen. थोड़ा टाइम लो, give it a try. Take 1 to 2 minutes per example and get answers out of it. 2 minutes per question.
Very good. You have got almost all answers correct. Yeah. Probably the last one will need correction. देखो. What we have here is in the very first one, if you see, यहाँ पर तो 2 है ही नहीं. There's no 2 here. तो 2 बनाना पड़ेगा. तो देखो, 1, 2 will stay. Another 2 will go inside. We have talked about this in the conversion of surds last lecture. अगर देखो रूट ओवर के अंदर में 4 होता है, बाकी कुछ भी लगाओ तो आउटसाइड 2 आ जाता है. So this 2 will go inside and this 2 will become 4 inside. Now can I say this looks like 11 plus 4 and this looks like 11 into 4. So when you take a square root, it will be root over 11 plus root over 4. Try to understand. कोशिश ये करो आप कि larger number सामने रखो. Like here, this directly appears to me like 17 plus 3 and this is 17 into 3. हमेशा रूट ओवर को मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना और बाहर वाले को एडिशन में. 2 है, our job is done. So when you calculate the square root of this, वही बोला, calculate the square root. When you calculate the square root, it will be equal to root over 17 minus root over 3. Keep the larger number in front. ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. See, if you are preparing for, let us imagine if you are preparing for JEE, उसमें बाहर लगता है बेटा प्लस माइनस. Because the theoretical exam, there are multiple possibilities. आप चारों वैल्यू लिखो बाहर में. In CAT, you're looking for only positive outcomes. Square root of a number, अगर square root given है, it is a positive outcome. So when I calculate square root of this, अब मेरे पास problem क्या है? I don't have 2 outside. मेरे पास 2 है ही नहीं बाहर में. तो मुझे अंदर से देखो, when inside there is 4, तो बाहर में 2 आता है. तो what I will do is, I will divide this by 4. बाहर में 2 आ जाएगा. When I divide this by 4, 4 into 6, 24, तो ये बन गया 65. Now, do you feel this is 16, this is 13 plus 5. The first part is 13 plus 5. 13 plus 5 and the second part looks like 13 into 5. So that will give me outcome root over 13 minus root over 5. क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा बीच में. If there is a minus outside, minus outside here as well. अब यहाँ अलग ही प्रॉब्लम है. There is no 2 available to me. 2 है ही नहीं मेरे पास. What I will do is, पहले तो ये 3 को अंदर भेज दो. 7 minus root over, ये 3 अंदर जाकर बन जाएगा 45. ये 3 जब बाहर था, when it goes inside it will become 3 square. अंदर जाएगा तो square हो जाएगा, बाहर आएगा तो root over लग जाएगा. Now please understand what I am doing is, I am multiplying 2 from outside. So when I multiply 2 from outside, I'll have to divide 2 as well. What I'm looking at is 14 minus 2 root over 45. अब थोड़ा ध्यान से, एक 2 नीचे रखा हुआ है. So when you put a root over, तो सबके ऊपर आएगा. ये वाला नीचे वाला, it will become 1 upon root over 2. And what is this? This is 9 plus 5. This is 9 into 5. 9 plus 5. 9 into 5. So you will have root over 9 minus root over 5. That is your answer. Fourth is slightly different. Maybe you have come across this. Maybe you have not come across this in exams. You have to bring a 2 from outside. Everyone take your time. Copy this down. Comment you are able to understand this. Others as well. Comment.
All right. Now I have tried to play with 3 numbers. देखो कुछ क्लिक करता है क्या आपको? There's a 2 missing from this. There's a 2 missing outside. Try. Can you calculate square root of 3 numbers? तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा. जैसे अगर आपके पास होता a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो एक a स्क्वायर बनता, एक b स्क्वायर, एक c स्क्वायर, एक बनता माइनस 2ab माइनस 2bc एंड 2ac. अगर a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर होता तो अकस बनता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. अब बनता आपके पास 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc. तो ये छोटा सा प्रॉब्लम हमारे सामने है. जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि देखो इसमें ये तीनों टर्म जो है पॉजिटिव हैं, ये आगे मिलेंगी आपको, ये वाली. और यहां पर देखो देर इज 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव. देर आर 2 नेगेटिव्स एंड 1 पॉजिटिव. फाइनल आउटकम. तो is the equation of the form 1 or is the equation of the form 2? ये छोटा प्रॉब्लम आता है when dealing with more variables. तो नेगेटिव कितनों को लेना है और किसको लेना है इज अ प्रॉब्लम. मैं आपके लिए एक बार ट्राई करता हूँ. देखो ये वाला मैं ट्राई करता हूँ. 14 को रहने दिया, मुझे 2, ये देखो हर जगह पे 2 कॉमन है ना, मुझे 2 बाहर चाहिए. तो 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बाहर आएगा. When you divide this by 4, 14 बच जाएगा. इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बाहर आएगा, अंदर 35 रह जाएगा. ऑलरेडी 2 बाहर है और अंदर 10 है. Now do you get a feeling? This is like 2 into 7. This is like what? This is 5 into 7. And this is what? This is 2 into 5. अब थोड़ा ध्यान देना. Does this look like to you as 2 plus 5 plus 7? 2 plus 5 plus 7 is 14. तो अब देखो when you calculate the square root of this, when you calculate the square root of this, आप थोड़ा गैस करना. क्योंकि आपके पास देखो 7 वाले दोनों मल्टीपल नेगेटिव हैं. 7 वाले दोनों मल्टीपल्स नेगेटिव हैं. यू हैव बोथ मल्टीपल्स ऑफ 7 एज नेगेटिव, दोनों मल्टीपल. तो a कैन बी 7. तो देखो a के दोनों मल्टीपल नेगेटिव है यहाँ पे b और c के साथ में. तो रूट ओवर 7 दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग दीज, माइनस रूट ओवर 5 माइनस रूट ओवर 2. तो 2 और 5 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आखिरी में देखो. Is it also possible that this turns out to be, देखो क्योंकि यहां पर जब आप ये वाला केस लोगे, इफ यू टेक दिस केस, तो a इंटू बी पॉजिटिव आएगा. इज 7 इंटू 5 पॉजिटिव हियर? नो. तो ये आपका आंसर है. यू हैव टू बी केयरफुल विथ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना और किसका लेना है. ट्राई टू कीप द लार्जेस्ट नंबर इन फ्रंट. हाँ, 2bc और माइनस 2ac आएगा. दैट इज करेक्ट. इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? इज एनीथिंग रॉन्ग विद द डिस्प्ले? अच्छा, वो ब्लू ब्लू कैसे आपको दिख नहीं रहा, द कलरेशन? हाँ हाँ, बट मैं आपको ये समझाना चाहता, प्लस माइनस का ही इशू होगा. जैसे भी प्लस 2bc एंड जैसे भी माइनस 2ac. दो नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा आपके पास इन बोथ केसेस. You have to be careful with plus minus signs. Understood. I understood your concern. Yes. What I suggest sometimes is, जैसे ये क्वेश्चन मॉक्स में अगर आपको दिखते हैं और मॉक्स में आपको ऑप्शंस गिवन है, मॉक में आपको ऑप्शन गिवन है A B C D, तो उनका जल्दी से स्क्वायर करके चेक कर लो. क्योंकि देखो इनका स्क्वायर इनके बराबर होगा ना. इनका स्क्वायर देखो, अगर आपका रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई है, मतलब y का स्क्वायर x के बराबर है. ये आपको गिवन है x, ये पूरा x गिवन है आपको, ऑप्शन में y गिवन है. तो अगर ऑप्शंस गिवन है एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज, बराबर है कि नहीं, स्क्वायर करके चेक कर लो, बेस्ट रहेगा.
First one, let me give it a try for you. Let me try and solve this for you. आप करना चाहते हो आप लोग करो. Try the first one. Try the first one. I have not received any answer so far. देखो मैं करता हूँ अभी आपके लिए. थोड़ा पेस मेंटेन करना है while solving these questions. केवल यहाँ एक प्रॉब्लम है. इसको 2 बनाने के लिए 3 अंदर भेजना पड़ेगा. जब 3 अंदर जाएगा it will reach as 9. ये बन जाएगा 9 into 2 18. तो ना you first pay attention to the 2 वाला पार्ट. यहाँ पर 2 into 15, 2 into 30 और यहाँ पे 2 into root over 18. अब देखो इनको ऐसे ब्रेक करना है. ये ऐसा ब्रेक होगा आपका. देखो if this is a into b, this is a into c, this is b into c, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है. this must be a plus b plus c. so it appears to me as the first one is 3 into 5, the first one is 3 into 5, second one looks like 6 into 5 and last one is 3 into 6. तो abc मिल गया मुझे. Is 14 equal to 3 plus 6, 3 plus 5 plus 6? Yes. पहला भी मैच हो गया. अब करना ऐसा देखो आपको. अभी आपको देखो पॉजिटिव में जो बड़ी वैल्यूज को आगे रखना है. तो आई एम राइटिंग रूट ओवर 6 हियर. रूट ओवर 6 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 से, दोनों नेगेटिव हैं, तो आई एम टेकिंग देम एज नेगेटिव्स. ये लो. मूविंग ऑन. रूट 6 minus root 5 minus root 3. Try this.
कोई रॉकेट साइंस है, सीधा स्क्वायर कर दो x का और दोनों जगह पुट कर दो, 1 अपॉन भी कर दो और सामने x भी कर दो, सब्ट्रैक्ट बोथ। देखो, there are multiple ways in which you can try. You can try x plus 1 upon x into x minus 1 upon x. फिर पहले ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, बाद में दोनों मल्टीप्लाई करो। अदरवाइज यू सी बोथ प्लेसेस आर स्क्वायर्स। सीधा x का स्क्वायर क्यों नहीं निकालते आप? इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2√30। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, 11 प्लस 2√30। तो इसको एक्स स्क्वायर को मुझे क्या करना है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर करना है। सीधे सीधे कर दो यहाँ से सॉल्व। क्या आ जाएगा? ये एक्स का स्क्वायर है 11 प्लस 2√30 और माइनस आएगा 11 प्लस 2√30। नाउ व्हाट वी डू, वी फैक्टराइज दिस। हम इसको फैक्टराइज करते हैं। वी फैक्टराइज दिस, वी मल्टीप्लाई 11 माइनस 2√30 अपॉन 11 माइनस 2√30। रैशनलाइज करते हैं हम इसे। दिस इज 11 प्लस 2√30, ऊपर में आ जाएगा -11 माइनस 2√30 और नीचे क्या आ जाएगा? देखो, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो नीचे आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, ये आ जाएगा -4 इंटू 30 विच इज 120, विच इज बेसिकली 1। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1। क्या लगाया डिनोमिनेटर मैंने? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाया डिनोमिनेटर में, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो और आंसर विल लुक लाइक 11 प्लस 2√30 माइनस 11, अब ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस 2√30, 11 11 कैंसल्ड, यू हैव 4√30। 4√30 कहीं दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ से एक 2 अंदर भेज दो, दैट 2 विल रीच एज 4, तो बन जाएगा 120। देखो, आंसर को भी घुमा फिरा के लिखा गया है। There is one method, if you can see above, x plus 1 upon x, x minus 1 upon x, but वो मेथड में आपकी एफर्ट बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी आपकी एफर्ट। you'll have to work twice hard for that. सीधा स्क्वायर कर दो, 1 अपॉन करके माइनस कर दो, योर आंसर इज रेडी। तो रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर वैसे ही 1 बन गया। क्लियर है? मूविंग ऑन, कंफर्मेशन फॉर दिस। कंफर्मेशन गाइस।
चलो try this. Find the sum of all possible values of x. Find the sum of all possible values of x. I can show you a similar question in CAT in 2023. Not exactly identical, but somewhat similar. इनमें आपको ऑब्जर्व क्या करना है? Let me try and solve this for you. तो ये जो है ना, it is a square of 2. So when I rewrite this, it is 2 to the power 2x. This I can rewrite. देखो, when you say a plus b, you can break it down as this. हमने प्रॉपर्टी रिवर्स पढ़ी है, एप्लीकेशन उल्टा कर रहे हैं. So I can rewrite the right hand side as 3 into 2 cube into 2 to the power x. ये क्या है? 8 into 3 24. ध्यान से देखो. Now I am rewriting this on the left side. ये 8 into 3 24, ये आगे 24 to the power x plus 128. Let us hope नेगेटिव वैल्यू ना आए, क्योंकि नेगेटिव पावर डिफाइन नहीं होगा. देखो, this is like this. Now I'm starting with a small assumption. 2 to the power x is equal to k. 2 to the power x is equal to k. So what is this? This is k square. ऊपर पावर डबल है, डबल पावर मीन्स स्क्वायर. Minus 24k plus 128 is equal to 0. अब आप स्टार्ट कर सकते हो विद द फॉर्मूला अप्रोच और फैक्टराइजेशन अप्रोच, बट एक चीज ध्यान देना, 2 to the power k अगर सॉल्वेबल है, k मस्ट बी पावर ऑफ 2. 2 to the power k, अगर x 1 है, 2 है, 3 है, तो k मस्ट बी 2, 4, 8, 16. तो देखो, थोड़ा ध्यान दो. आई एम trying to work with powers of 2. Does it appear to you as 6 plus 8, 16 plus 8 and 16 into 8? देखो मैच हो रहा है क्या? I am assuming कि अगर नेचुरल नंबर है तो ऐसा होगा. अगर कोई भी पावर नहीं मैच होगा, then we are in trouble. फिर वो रूटो लगेगा, सर्ज लगेगा. और ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हाउ डू वी सॉल्व क्वाड्रेटिक? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये रहेगा. अगर 2 के पावर मैच नहीं होते तो मैं इधर जाता, पहले से क्यों जाऊं? तो 6 plus 8 is 24, 6 into 8, 16 into 8 is 120. All things match. तो जो आपका k है, it is either 16 और k is 8. तो अगर k 16 है, what is k? 2 to the power x. अगर ये 16 है तो x must be 4. और अगर ये 8 है, x must be 3. What is the question? Find the sum of all possible values of x. So answer would have been 3 plus 4, 7. अब सर हमें एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा ये चीज करनी है. यू नोटिस ऑन दिस साइड इट इज अ स्क्वायर ऑफ 2. तो यहां पर पावर 2x आएगी फॉर श्योर, और यहां पर पावर x दी है. वॉट एवर यू हैव हियर उसका स्क्वायर दिया हुआ है. वॉट एवर इज अवेलेबल हियर उसका स्क्वायर. तो यू अंडरस्टैंड इट्स अ क्वाड्रेटिक. अब कई बुक्स में कई जगहों पे मेंटर्स ने ये क्या रखा है, व्हाई डोंट यू पुट वैल्यूज एज 1, 2, 3, 4 चेक करो. वो भी कर सकते हो आप, प्रोवाइडेड अगर ये इंटेजर है और छोटा मोटा इंटेजर है.
तो यू कैन चेक वैल्यूज एज वेल. कैट में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर लॉग्स में था. द वैल्यू ऑफ एक्स वाज इन लॉग्स. वो भी कराऊंगा आपको मैं इन वर्कशॉप्स, नॉट टू वरी. कैट 2023, if I am not mistaken, second slot had a question like this. Second slot. Did you understand the reasoning? Why am I checking for 16 and 8 only? आप अगर बेस 2 कर भी दोगे तो कॉमन लेके कैंसिल तो नहीं कर पाओगे ना आप. ये 128 में भी 2 टू द पावर आपका आ जाएगा 7. Comment on this. Try this. If you are comfortable with replacement of values, वैसा सोचो. Totally up to you. If you can solve it through equations, go for it. Totally up to you. दो तीन तरीके आपके पास है यहाँ पे.
Comment answers A, B, C, D. What are your answers? ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर आप assumption लेना चाहते हो तो be very careful with conditions. It clearly says x, y, z, they are all above 1. x, y, z are above 1. और ऐसे खतरनाक खतरनाक अलग अलग पावर लेने और सबसे अच्छा नंबर 2 होता है. मुझे 3 पावर चाहिए और मुझे तीनों बराबर चाहिए किसी और के. ध्यान से देखो, 2 to the power 6 is equal to 4 to the power 3 is equal to 8 to the power 2 is equal to 64. अलग अलग पावर्स को बराबर करना है. 2 and 3 आर द बेस्ट नंबर्स. छोटे होते हैं, उनके पावर हैंडल करना भी आसान है. उसी व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, व्हाट इज जेड आपको दिख रहा है यहाँ पे. अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है. एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 2 इंटू 4 इंटू 8, ये कैलकुलेट करना है. और ऊपर पावर में क्या लिखा हुआ है? a इंटू बी इंटू सी. ये a है, ये b है और ये c है. तो a b c मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 36. और नीचे है a b, 6 इंटू 13 18. फिर है b c, b c is 2 इंटू 3 विच इज 6. और फिर है c a, 6 इंटू 2 12. तो मेरे पास नीचे क्या है? नीचे अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हो वैसा कर लो, मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बन जाता है वैसा कर लो. मुझे ऐसा लग रहा है फैक्टराइज करता हूँ. ये 2 क्यूब है, ये 2 स्क्वायर, ये 2 है. क्यूब स्क्वायर 1, तो पावर 6 बन गई. यहाँ पे 2 की पावर 6 बन गई. पावर प्लस हो जाएगी 6. और ये क्या है? 36 अपॉन ये क्या है? 36 विच इज 1. तो 2 की पावर 6 बन के मिलना चाहिए मुझे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. इफ आई लुक एट द फर्स्ट वन, अगर मैं पहले वाले पे ध्यान दूं, पहला वाला कह रहा है आप इन तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं 64 के. तो ये बन जाएगा 3 इंटू 64 विच इज 3 इंटू 2 की पावर 6. मुझे केवल क्या चाहिए? 2 की पावर 6 चाहिए. तो ये आंसर नहीं हो सकता. अब ये कह रहा है पावर को भी मल्टीप्लाई कर दो और इनको भी मल्टीप्लाई कर दो. थोड़ा ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखो इसको. x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब कि 2 इंटू 4 इंटू 8. और कह रहा है पावर को मल्टीप्लाई कर दो. पावर क्या है? 6 इंटू 3 इंटू 2. तो बहुत भयंकर नंबर बन गया ना. 2 की बहुत बड़ी पावर बन गई. ये भी नहीं हो सकता. तो आंसर या तो सी या तो नन ऑफ दीज है. अब बोल रहा है x की पावर 1/, x क्या था हमारा? 2. 2 की पावर 1/6. अगला क्या है? पाई. y क्या है? 4. 4 की पावर 1/b. और 8 की पावर 1/c. अब ये बेटा किस एंगल से आपको देगा 2 का पावर 6? मेरे को बताओ. डी इज द आंसर. D is the answer, guys. None of these is the answer. अब देखो, क्योंकि none of these आंसर है. लेट अस इमेजिन आपने बहुत यहाँ पे दिमाग लगाया, आपने इक्वेशन से सॉल्व किया, बहुत घुमाए फिराए और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यू फील फ्रस्ट्रेटेड. यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट मेरा आंसर सही है कि नहीं है. ऐसे सबसे लॉजिकल अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे? इफ यू वांट टू अरेंज दी, सबसे पहले तो ये अरेंज हो जाएगा. ये एबीसी को सबके नीचे ले आओ, एबीसी एबीसी, तो ये ऐसा बन जाएगा ऐसा. यू इमेजिन दीज नंबर्स आर इक्वल टू समथिंग. लेट अस से n, n के बराबर है. तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू n की पावर 1/, ये आ जाएगा आपका n की पावर 1/a, ये आ जाएगा n की पावर 1/b, और ये आ जाएगा आपका n की पावर 1/c. ध्यान से देखना, ये आ जाएगा n की पावर 1/c. और बाहर में क्या? 1/1/a, 1/b, 1/c.
तो अंदर में है n की पावर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और बाहर में 1 अपॉन है, तो ये और ये कट के आपको n मिल जाएगा। n इज इक्वल टू आइदर दिस और दिस और दिस, किसी भी एक के बराबर, दैट इज योर आंसर n। थोड़ा ये अप्रोच को मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन अ डिफरेंट कलर, ब्लू कलर, ये ध्यान दो आप। ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है तो मैंने किस में सॉल्व किया, पावर्स ऑफ 2 में। आप चाहो तो इन सबको n के बराबर लेके यू कैन इन्वर्ट दीज पावर्स एंड सॉल्व फ्रॉम देयर। आपका आंसर भी मैच हो रहा है। आंसर इज 64 विच इज 2 टू द पावर 6, और हम प्रूव भी कर पा रहे हैं कि इट शुड बी इक्वल टू n। Moving on, try this. ये इनफाइनाइट रिपीटेशंस का एग्जाम्पल है। व्हाट वी से इज, अगर कोई चीज इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है और आप उसमें से एक वैल्यू को अलग भी कर दो तो इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर देखो ऐसा होता, आपके सामने ऐसा लिखा होता
मान लो ऐसे, मान लो 1+1+1+1+1 इनफाइनाइट टाइम लिखा होता, आप उसमें से एक 1 अलग भी कर दोगे तो भी इनफाइनाइट टाइम्स ही रहेगा. When there are infinite repetitions, we take away one of the repetitions. तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी स्पेस यूज करूंगा. देखो, इट इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस, आपको दिख रहा है यहाँ पे फिर से 1/2 प्लस आ गया. हमारा शुरू कहाँ से हुआ था? x इज इक्वल टू 1/2 प्लस, यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस. ये बहुत लोग कंफ्यूज करता है. जो आपके सामने वैल्यू लिखी है x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस दिखना चाहिए. तो आई विल टेक ऑल ऑफ दिस एज x. I will write x is equal to 1/2 plus 1/3 plus x. ये मैं कह रहा था, इनफाइनाइट में से एक रिप्लेसमेंट आ देना आपको. इफ आई रीअरेंज द राइट हैंड साइड, ऊपर जाके बन जाएगा 6 प्लस 2x, ये बन जाएगा 1/6 प्लस 2x प्लस 1/3 प्लस x. ये ऊपर चला जाएगा फर्दर, ये हो जाएगा 3 प्लस x अपॉन 7 प्लस 2x इक्वल टू के x के बराबर है ये. अब मैं रीअरेंज करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो आई हैव 7x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस x. इनको इधर लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर, 3 को इधर लेके आ जाओ, x को लेके आ जाओ, 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि सारे आंसर ऑप्शन रूट ओवर वाले, तो आपको रूट ओवर में जाना ही पड़ेगा. x इज इक्वल टू -6, बीच वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है बेटा, इसको नेगेट करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई एम यूजिंग? The formula I am using is minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. तो -6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 का स्क्वायर. अब जब आप माइनस करोगे 4 इंटू 2 इंटू करोगे -3, तो ये प्लस बन जाएगा आगे जाके अपॉन 2 इंटू 2. ए का वैल्यू 2 है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे -6 प्लस माइनस रूट ओवर, ये क्या है? 4 into 2 8, 8 into 3 24, 24 plus 36 is 60 अपॉन 4. मुझे ऐसा लग रहा है कॉमन ले सकते हैं, यहां से 4 बाहर निकल के 2 आ जाएगा. -6 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 15/4, 2 कैंसिल कर दो. -3 माइनस 2 रूट 15/2 -3 प्लस 2 रूट 15/2. You tell me what answer will you mark? वेरी गुड. तो ये जो ट्रिक आप देख रहे हो ना कि पॉजिटिव चाहिए, ये मेरे ही लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग यूज कर करके अभी क्लासेस में यूज हो रही हैं लोकली यहाँ पे. अदरवाइज ये इतना सोचते नहीं थे लोग. बिकॉज x इज अ पॉजिटिव नंबर, ये 1/2 प्लस है, भले छोटा होता जा रहा है. 1/1/2 प्लस 1/3 प्लस, ऐसे ही छोटा होते जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है. दिस कैन नॉट बी द आंसर. दिस कैन नॉट बी द आंसर. सो आइदर दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर. क्योंकि नन ऑफ दीज है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको. यू मस्ट कंप्लीटली सॉल्व. ये आपका आंसर है. दिस विल ऑलवेज वर्क. आप कैसा भी रिपीटेशन दे दो, दिस विल ऑलवेज वर्क. कैट में अभी तक 3 रिपीटेशन वाला कभी नहीं आया. यहाँ पे देखो 2 और 3 रिपीट कर रहा है. दैट हैज अपीयर्ड इन कैट अर्लियर. 3 वाला आज तक नहीं आया है.
अब एक खतरनाक जुगाड़ वाला मेथड है। देखो, दिस क्वेश्चन हैज व्हाट, दिस क्वेश्चन हैज ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो मैं जुगाड़ नहीं लगा रहा हूं यहां पे। कंप्लीट दिस, लेट मी नो। एक बहुत अच्छा जुगाड़ वाला मेथड भी, दिस वेरी गुड मेथड ऑफ जुगाड़। अभी अगले क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मैं। All right, moving on. Not this one. मैं एक छोटा क्वेश्चन क्रिएट करता हूं आपके लिए। देखो, I'll add one extra slide. बट फिर ऑप्शंस भी दिए होने चाहिए ना, ऑप्शंस के साथ ही काम आएगा। देखो, मैं भी आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। दिस इज अ क्वेश्चन। पहले तो एक थ्योरी भी सीख लो बेटा, ये वाली थ्योरी भी देख लो। दिस इज नो लॉन्गर कैट लेवल, बट बाकी एग्जाम में दिख सकता है आपको। व्हेन यू हैव नंबर्स लाइक दिस, लेट अस से 90 plus root over 90, this is not cat level any longer, plus root over 90 plus root over 90 infinite time। देखो, root over infinite times is equal to x। You must be able to break this down as multiplication of two numbers, ऐसा, two consecutive numbers, consecutive पे ध्यान दो आप, consecutive numbers 90 9 to 10। अब सारे प्लस 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 है, तो द लार्जर नंबर इज द आंसर। लार्जर नंबर इज द आंसर इन दिस केस 10। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट अस से यू हैड 42 minus root over 42, root over 42। Understand, if it is plus 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 plus, your job is to take the larger value outside। This is 6 into 7, लेकिन the sign is minus minus minus, तो you will take the smaller value as the outcome। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिराइव होते हैं, इससे डिराइव होते हैं। बट मैं नहीं डेरिवेशन बता रहा आपको, ये नहीं आता अभी कैट में। व्हाट यू विल डू इज, आप इसको x बुला दोगे और दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे और सॉल्व इट। इसको x बुला दोगे और स्क्वायर सॉल्व कर दोगे। जो कैट में क्वेश्चन आया था कई साल पहले, वो ये था। Now you are facing two issues simultaneously, और ऑप्शंस गिवन थे, ऑप्शंस गिवन थे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग? पहला तो एक चीज, ये सारे प्लस 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 नहीं है, देर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक और चीज, इज 4 अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बैक टू बैक नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? नो। तो ये थ्योरी क्लासेस में कराई जा रही है, और कैट वाले क्वेश्चन ये दे रहे हैं। सो दे नो व्हाट इज बीइंग कवर्ड इन द क्लास, वो उसको एक लेवल ऊपर ले जाएंगे एंड यू विल पैनिक। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, लर्न मल्टीपल मेथड्स, लर्न मल्टीपल अप्रोच की। कैट वाला वही चेक करेगा। तो ना बेटा, इसके ऑप्शंस अगर मेरे सामने हो ना, तो आई कैन टीच यू अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड
ऑफ वेरीफाइंग आंसर्स। इसको सॉल्व करने का काफी अलग लेवल का तरीका है। आप पॉजिटिव वाले के बाद को x मान लोगे, नेगेटिव वाले के बाद को y मान लोगे, और दो स्क्वायर्स को प्लस माइनस करके सॉल्व करते हैं। इट्स अ वेरी एडवांस मेथड। तो फिर जेई वेई साइड चले गए हम लोग, या ओलंपियाड साइड चले गए, वो नहीं कर रहे अपन अभी यहाँ पे। आई एम क्लिकिंग नेक्स्ट। आई कैन नॉट कम बैक टू दिस, कॉपी डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन। आई कैन नॉट कम बैक टू दिस। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है स्क्रीन पे, दिस वन, फॉर दिस आई नीड ऑप्शंस टू बी देयर। ऑप्शन से आपको मैं बड़ा ही सही ढंग से वेरीफाई करके बता सकता हूं आंसर क्या आएगा। चलो मूविंग ऑन। नहीं, कोप्राइम्स बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम होते हैं यहां पर बस कंसेक्यूटिव चाहिए, ऐसा कोप्राइम होना कोई जरूरी नहीं है। कंसेक्यूटिव नंबर्स आर बाय डिफॉल्ट कोप्राइम्स। यहां कोप्राइम होना जरूरी नहीं, बस कंसेक्यूटिव होना जरूरी है। कंसेक्यूटिव इज द वर्ड, कंसेक्यूटिव। ये तो आप कल को 15 को 3 into 5 करके तोड़ोगे, खत्म हो जाएगी कहानी। जैसे √15 √15 √15 दिया हुआ है, उसको आप 3 into 5 करके तोड़ोगे, खराब हो जाएगा सब। हाँ, this one if you want to try, go ahead. What exactly is written here is this. This is 1 upon 1 plus x to the power b minus a, x to the power c minus a, 1 upon 1 plus x to the power a minus b, x to the power c minus b, plus 1 upon 1 plus x to the power b minus c, x to the power a minus c. कभी भी साइक्लिक पैटर्न दिखे, a minus b, c minus a minus b, c minus b, एंड देर इज नो अदर कंडीशन, कोई और कंडीशन नहीं है, इनको बराबर रख के चेक कर लो। सॉल्व भी कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आप अगर सॉल्व भी कर दोगे, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, किसी एक पे काम करो, किसी एक पे काम करो, बाकी रिपीटेशंस है। दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, एलसीएम लेके ऊपर भेज दो। कैन आई से इधर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे b ऊपर चला जाएगा, ये b माइनस से b ऊपर चला जाएगा, और नीचे इट विल बी सेम। It will always be same number here equal to 1. It is a fixed outcome. Moving on from this, वो बेटा x into y लिखा हुआ है वहां पे, x into y।
गिव इट अ शॉट, ट्राई करो इसको एक बार। थोड़ा सा फ्रेमिंग का इशू है इस क्वेश्चन में, आई कैन सेंस इट फ्रॉम हियर। थोड़ा सा फ्रेमिंग इशू किया मैंने, बट एक लॉजिकल अप्रोच आपको समझ में आएगी। यू विल गेट टू सी वन लॉजिकल अप्रोच टू सच क्वेश्चंस। देखो वन थिंग, ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है। आई कैन थिंक ऑफ टू अप्रोचेस। नन ऑफ दीज थोड़ा काम खराब कर रहा है, नन ऑफ दीज इज देयर, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अदरवाइज मैं कोई ऐसा वैल्यू पुट करूंगा x का जिससे y सिंप्लीफाई हो जाए और ये सिंप्लीफाई हो जाए। ध्यान से देखो, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, कैन आई से y टर्न्स आउट टू बी 2? x is equal to 1 gives me y is equal to 2। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, मैंने इसमें 1 रख दिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1। ये कैंसिल, ये बन जाएगा 3 प्लस 1 4। मुझे इन ऑप्शन में से जो वैल्यू 4 देगी वो आंसर है, बट नन ऑफ दिस का थोड़ा इशू है। तो मैं x को रख रहा हूं 1 और y को रख रहा हूं 2। x को रखा 1, y को रखा 2। 4 माइनस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। मुझे कितना चाहिए? 4 चाहिए, बाहर हो गया। 1 यहां रखा मैंने 2, 4 माइनस 2 प्लस 4, मुझे कितना मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 6। मुझे कितना चाहिए? 4, ये बाहर हो गया। 1 यहां रखा 2, 4 माइनस 2 प्लस 5, 4 माइनस 2 प्लस 5 इज फर्दर 7, ये भी बाहर हो गया। तो नन ऑफ दीज इज माई आंसर। क्या मन में डाउट रहता अगर इनमें से कोई ऑप्शन मैच हो जाता? आई विल ऑलवेज हैव दैट डाउट इन माई माइंड कौन सा सही है। ये अगर मान लो सी मैच हो जाता, अगर ये आंसर है या फिर ये आंसर है, नन ऑफ दीज मीन्स भाई वैल्यू 4 लाने के तो और भी इक्वेशन हो सकते हैं ना। फिर आप x को कुछ और रख के चेक कर सकते हो, -1 रख के चेक कर सकते हो, मर्जी है आपकी। यू कैन पुट x इज इक्वल टू -1 एज वेल। ये हुआ जुगाड़ वाला तरीका टू चेक, ऑप्शंस को पुट करके, वैल्यूज को पुट करके, जुगाड़ करके। इफ आई ट्राई टू सॉल्व इट प्रॉपरली, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, एवरी ऑप्शन हैज एक्स स्क्वायर आउटसाइड। दिस इज अ डिग्री 4 इक्वेशन एंड एवरी इक्वेशन हैज वाई स्क्वायर माइनस वाई। देखो हर किसी में क्या है? वाई स्क्वायर माइनस वाई हर किसी में है। अब देखो मैं क्या अरेंज कर रहा हूं। कैन आई राइट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये वैल्यू है y का, ये वैल्यू है y का। तो अगर आप मुझे देखो, हर इक्वेशन में क्या दिया है? वाई स्क्वायर माइनस वाई। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने y का स्क्वायर निकाला, दिस इज y का स्क्वायर। और मुझे y को माइनस करना है इसमें से, मुझे y को माइनस करना है इसमें से।
वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस बन गया 2 माइनस एक्स माइनस 1/x। अब इसके बाद एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट कुड बी एनीथिंग, एक कांस्टेंट आएगा। देखो तो मैंने थोड़ा ध्यान से समझना, स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं प्लस के, इसमें कर दिया मैंने प्लस के, और बाहर से मैं क्या लगा रहा हूं, एक्स का स्क्वायर लगा रहा हूं। देखो कैसे आई एम एबल टू कनेक्ट मिडवे, मैंने पहले y को निकाला, y के स्क्वायर को निकाला, अब मैं उसको ऑप्शंस के फॉर्म से कनेक्ट कर रहा हूं प्लस के लेके। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा, एक्स का पावर बन जाएगा 4, ये एक्स स्क्वायर यहां पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा +1, ये एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा तो इट विल बिकम 2x², ये एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा इट विल बिकम -x³, ये एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा, ये एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा इट विल बिकम -x, ये यहां पर आएगा इट विल बिकम +kx², x की पावर 4। देखो ये जो क्यूब है तो फिक्स है, ये बेटा यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर है, एक क्यूब होना चाहिए था इनमें से, ये हम ये मिस्टेक ना ऑफ दिख रहा है, ये मैच हो गया। अब ये -x तो चेंज नहीं होगा, आपका -x तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये +1 बचेगा आखिरी में। केवल ये वाला आपको सॉल्व करना था, आपके पास यहाँ पे 2 + k x² आएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को सही कर दूं, इफ आई करेक्ट दैट इक्वेशन, इसको मैंने हटा दिया, अब ये 2 + k है, 2 + k मीन्स 4, अब आपका आंसर मैच होता। ये क्यूब है। सी क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ, x + 1/x इज इक्वल टू y लेके फ्रेम किया गया क्वेश्चन। वाइल सॉल्विंग आई हैव टू अप्रोच रिवर्स, मैंने x को राइट साइड भेज के डिनोमिनेटर बना दिया। गाइस कंफर्मेशन ऑन दिस, पहला वाला मेथड भी काफी इफेक्टिव है, वैल्यू ऐसी एज्यूम करो, इट इज इजियर फॉर यू टू कैलकुलेट x एंड y। x को 1 लिया तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, और 1 और 2 रख रख के यू कैन चेक ऑल आंसर ऑप्शंस। ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको चाहिए, इन दैट ऑल्सो यू पुट x इज इक्वल टू 1 एंड चेक ऑल आंसर ऑप्शंस। गिव इट अ ट्राई।
तो पहले इंस्टेंस में ऐसा फील होता है कि 2 के पावर सेपरेट कर लो, 3 के पावर सेपरेट कर लो. See, this is made up of powers of 2 and this is powers of 2, this is powers of 3. इनको इधर लेके आ जाओ, इनको इधर लेके आ जाओ. So what I have is ये क्या लिखा आपने, 9 to the power x into 9 to the power minus 1 by 2. इधर आके प्लस बन जाएगा 3 to the power 2x into 3 to the power minus 3. ये इधर जाएगा 2 to the power 2x into 2 to the power minus 2 और ये बन जाएगा plus 4x. तो जो रीअरेंज कर सकते हो, वट एवर इज विद इन योर एबिलिटीज और रेंज, गिव इट अ शॉट. ये क्या दिख रहा है, 9x. ये भी तो 9, ये भी 4x है, ये भी 4x है, ये भी क्या है, ये भी 9x है. ये 3 स्क्वायर इज 9x. मैंने 9x को कॉमन ले लिया. ये क्या है, 1 अपॉन रूट ओवर 9. 1 अपॉन रूट ओवर 9 इज दिस. और ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस थिंग, 1 अपॉन 3 क्यूब. ये रहा. राइट साइड मैंने क्या कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया. व्हाट इज दिस, 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1. अब इनको सॉल्व करना है मुझे. 9 टू द पावर x, ये एलसीएम आ जाएगा 27, 9 प्लस 1 10, 4x कॉमन, ये ऊपर चला जाएगा 5 अपॉन 4. जो कैंसिल कर सकते हो कर दो. कैंसिल 2 टाइम्स. इसको इधर भेज दिया, इसको रहने दिया. ये हो जाएगा 9 टू द पावर x माइनस ये 27 है. 27. अब 27 कैसे लिखूं मैं 3 में कन्वर्ट करता हूं इसको. मैं 1 अपॉन लोगे तो भी चलेगा. मैं इसको 4x को नीचे ले आता हूं, इट्स बेटर. इसको मैं नीचे ले आता हूं. 9 अपॉन 4 टू द पावर x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 27 अपॉन 8. अभी लेफ्ट साइड में क्या है, 3 का और 2 का पावर है 2x. और राइट साइड में क्या है, 3 का पावर 3 है और 2 का भी पावर 3 है. अब याद करो, ये मैंने आपको ऐसा प्रॉपर्टी सिखाया था और मैंने कहा भी था कैट में आते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज. कैन राइट द राइट साइड नंबर लाइक दिस. 3 ऑलरेडी 3 के फॉर्म में है क्या, खत्म हो गया ना आपका सवाल. ऑलरेडी 3 के फॉर्म में है तो कैंसिल ही होगा सीधा. रिवर्स भी नहीं करना पड़ेगा मुझे. तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 बाई 3, 3 बाई 2, 3 बाई 2. There is your answer. ऑप्शन यूज करो, परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली ओके है. मैच होती है सीधा मैच कर लो ऑप्शन से, नथिंग रॉन्ग विथ इट. नाइन और 4 क्या है बेटा, 9 और 4 3 और 2 के स्क्वायर है. तो मैंने स्क्वायर को कॉमन ले लिया. केवल x का वैल्यू चाहिए अपने को, x का वैल्यू चाहिए. ये क्या है देखो, हम क्या कहते हैं, व्हेन द बेस इज सेम, ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है तो पावर मैच होना चाहिए. 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 बाई 3. हमने उल्टा क्या किया, ये जो 9 है, इस 9 को 3 स्क्वायर बना दिया हमने. और ये जो 4 है डिनोमिनेटर का, ये जो 4 है इसको 2 स्क्वायर बना दिया. बेसिकली ये किया हमने. ये मैंने एक स्टेप सेव कर लिया. पावर कॉमन ले सकते हैं ना अपन. ये किया बेटा, ये वाला ऑपरेशन आप बोल रहे हो, ये स्क्वायर कैसे किया, ये ऑपरेशन है अपना. ये स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, स्क्वायर करना नहीं है.
Moving on. So go on, give it a try, apply common sense, बैठ जाओ उस पे. You're looking at a past CAT question. If I'm not mistaken, it's the past CAT question. देखो, one thing that comes to my mind is, क्योंकि पावर 4 मांगा है, पावर 4 इसका स्क्वायर कर दो. इसका अगर स्क्वायर हो गया तो राइट साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अभी एक्स स्क्वायर खुद किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, ये खुद क्या है? एक्स प्लस 1, क्या बच गया? 2x प्लस 1, क्या बन गया? 3x प्लस 2. 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4. आपको पावर 4 के साथ में क्या चाहिए? यू नीड फर्दर डबल. आपको डबल लगाना है इसको. तो व्हाट यू लुकिंग फॉर इज 6x प्लस 4. हमें ये वैल्यू चाहिए. अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए. दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और इसका आंसर में x के थ्रू मिलेगा. तो लुक एट द ओरिजिनल फॉर्म. दिस इज इक्वल टू x प्लस 1. अब इससे क्या इक्वेशन बनेगी? माइनस ऑफ माइनस बी, इसका माइनस होगा 1, फिर होगा प्लस माइनस रूट ओवर, इसका स्क्वायर होगा, और 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 4. अब मेरे पास दो वैल्यू है. एक है प्लस 1 प्लस रूट ओवर 5/2, दूसरी है प्लस 1 माइनस रूट ओवर अपॉन 5. ये दो वैल्यूज है. क्या बोला? एक्स इज मोर देन 0. क्यों बोला ऐसा? ताकि आप इसको नेगेट कर पाओ. आपको बोला एक्स इज मोर देन 0, तो दो रूट आएंगे, एक को हटा देना है. अब खाली इसको इधर पुट कर देना आपको. 6 इंटू 1 प्लस रूट ओवर 5/2, ऊपर कट के 3 बन जाएगा. आपका आंसर आ जाएगा ऐसा, 3 प्लस 3 रूट 5, 3 प्लस 3 रूट 5, 3 प्लस 3 रूट 5. देखो एक बार प्लस माइनस चेक करो कैलकुलेशन में. 3 प्लस 3 रूट 5. टाइपिंग मिस्टेक किसी का आंसर ऑप्शन है, टाइपिंग मिस्टेक है. 3 प्लस 3 रूट 5. अच्छा, ये आखिरी में ये भी तो लगा है बेटा, ये भी तो लगा ना, ये इसको भी तो हमने कैलकुलेट नहीं करना अभी तक. ये 4 भी तो आएगा आखिरी में, प्लस 4 भी तो आएगा. ये वाला 4 कहाँ यूज किया आपने अभी? ये वाला 4 भी आएगा, तो आपका 7 बन जाएगा. देयर इज योर आंसर.
होगा एग्जाम में भी, यू हैव सॉल्व्ड इट टू अ पर्टिकुलर लेवल, एक आंसर देखने नहीं मिल रहा, तो देखो कुछ मिस हुआ है कि आपने से रीचेक। इनफैक्ट अभी क्या होगा कैट में, आपको ना 5-5 लाइन के क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, आपने पूरा सॉल्व कर दिया, एक्स निकाल दिया, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट, पूछा क्या है, देन फाइंड। एक्स मांगा है, एक्स स्क्वायर मांगा है, रूट ओवर एक्स मांगा है, एक्स बाय 2 मांगा, ये चेंज होता रहता है। एवरी टाइम यू आर अबाउट टू मार्क आंसर, जो आखिरी के 8 वर्ड्स होते हैं, ऑलवेज री रीड दैट। बहुत मिस्टेक बचेंगे आपके इससे। आई एम एबल टू अवॉइड एटलीस्ट 1 to 2 मिस्टेक्स इन एवरी पेपर ऑफ कैट। गाइस कंफर्म द आंसर, कंफर्म द अप्रोच, क्लिक कर रहा है। या अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट, बट इसमें सर्ड ऑप्शंस भी हैं, तो बी केयरफुल, फ्रैक्शन ऑप्शंस भी हैं, तो बी केयरफुल। गिव इट अ ट्राई, गिव इट ऑनेस्ट शॉट। You want to go with options, there's a possibility मैच हो जाएगा, नॉट अ वेरी बिग डील, बट ऐसे वाले ऑप्शंस आप कैसे चेक करोगे पुट करके? If you want to rearrange and say this is what 3 का square, 3 का square bracket 2x minus 1, तो 3 का power 4x minus 2, this is 3 का power 4, तो 3 का power 4 into x minus 1, so 3 का power 4x minus 4। तो एक आइडिया क्लिक कर रहा है कि पावर मस्ट बी, पावर हैज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये शायद मैच कर जाए। लेट मी गिव इट अ शॉट, लेट मी गिव इट अ शॉट। 3 का पावर मैंने इसको लेके यहां पुट कर दिया, 4 इंटू 9/4 माइनस 2, कैंसिल कैंसिल, 3 का पावर 7। अभी क्या होता है मैं देखता हूँ, आई डोंट नो क्या होता है, देखता हूँ मैं। यहां पुट किया मैंने 3 का पावर 4 इंटू
9/4 ये कैंसिल, -4, तो 3 का पावर 5। अब इन दोनों में से थोड़ा आप ध्यान दो, लेट मी गिव इट अ शॉट। दोनों में से 3 का पावर 5 आई कैन टेक कॉमन, 3 का पावर 5 कैन टेक कॉमन, तो 3 स्क्वायर -1 विच इज 8। अभी 3 का पावर 5 नहीं आता मेरे को, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3, ये हो गया पावर 5, और अंदर है 9 -1 8, तो ये हो गया 9 इंटू 9 81, और ये हो गया 24। देखो मैच हो रहा है क्या? 20 इंटू 81, 20 इंटू 81 1620, 4 इंटू 81 432। देखो मैच हो गया ना? ऑप्शन से बनाना चाहो बन जाएगा। 1 + √5/2 लिया, एब्सोल्युटली 1 + √5/2 लिया हमने। x⁴ रेस किया ना हमने, स्क्वायर को स्क्वायर करके, हमने स्क्वायर को ही स्क्वायर कर दिया तो पावर 4 मिल गया। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, डबल किया इसको हमने, फिर हमने x की वैल्यू निकाली, यहां से हमने x की। अच्छा, आप चाहते हो इसकी पावर 4 करना, इसकी पावर 4 करना, वैसा कर लो अगर आपको फॉर्मूला सूट करता है तो। इसी का पावर 4 रेस कर दो, टोटली अप टू यू, बिल्कुल कर सकते हो, एब्सोल्युटली सेम आंसर आएगा। These are clever methods for these questions. ऐसा नहीं कि अकेला यही मेथड है, यू कैन ट्राई समथिंग न्यू ऑन योर ओन एज वेल। अपने साइड से कुछ नया ट्राई कर सकते हो आप। कंप्लीट दिस, ये हमने ऑप्शन से बनाया, अगर ऑप्शन से नहीं बनाते तो 3 की पावर 4 कॉमन लेके बनाते थे। इसमें जो हाईएस्ट क्वेश्चन मैंने देखा है दैट इज 5 की पावर 7 रिक्वायर्ड थी। 5 की पावर 7, 3 की पावर 9 रिक्वायर्ड थी, 3 की पावर से कुछ 9 या 10 रिक्वायर्ड थी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। Take 2 minutes, try this.
क्या कह रहे हैं, n की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 160। अगर ये सच है तो फिर इसका कोई तो इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल पूछ रहे हैं, उसमें 2 की पावर बतानी है। ये is a multiple of 2 की पावर x. What is the highest possible value of x? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो, लेफ्ट साइड में n की पावर n है और राइट साइड में 2 की पावर है, तो मुझे इससे ये आइडिया पता पड़ता है पावर कुछ भी हो, ये जो n है ये भी 2 का पावर होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा लिख दूं 81, अब 81 मेरे को पता है 3 का पावर है 9 का पावर है, तो x भी 3 और 9 के पावर से ही बनेगा ना। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि राइट साइड में 2 है बेस में, तो n में भी 2 आएगा, n में भी 2 आएगा। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, यहां 5 भी है, लेकिन n में तो 5 नहीं आ सकता, n तो केवल 2 का मल्टीपल। अब देखो मैं 5 को अलग निकाल रहा हूं इसमें से, 160 में से, तो क्या बचेगा 32। मैं रीअरेंज कर रहा हूं, 2 की पावर 5 ब्रैकेट 32। अब आप मेरे को देख के बताओ, डज इट मैच ऑन बोथ साइड्स? डज इट मैच ऑन बोथ साइड्स? ये आ गया 32 की पावर 32 इज इक्वल टू n की पावर n। अब मैच हुआ आपका नंबर। अब ये क्योंकि n है, मेरे को n क्या है 32, मुझे 32 का स्क्वायर चाहिए, 32 का स्क्वायर n स्क्वायर, और क्या चाहिए 2 का पावर n चाहिए, 2 का पावर 32 चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 की कौन सी पावर इसको डिवाइड कर सकती है। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, ये क्या 2 का पावर 5 ब्रैकेट 2 प्लस 2 का पावर 32, तो 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 32, 2 का पावर 10 बाहर निकाल लो, अंदर जो बचेगा हमें क्या करना, मैक्सिमम पावर कितनी निकाल सकते हो आप यहां से, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर, 10। तो ये ऐसा बच जाएगा। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2? 2 का हाईएस्ट पावर क्या है जो डिवाइड कर सकता है इसको, 10। यू हैव सॉल्व्ड अ पास्ट कैट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कैट में, थोड़ा सा लॉजिक को ट्विस्ट करेंगे एंड यू विल फंबल, क्योंकि n का पावर n चाहिए हमें, वी नीड n का पावर n। हमें n का पावर n चाहिए, तो ये दिख रहा है 2 में सीधा n में 2 आएगा, 5 कहां से कॉमन लाओगे, तो 5 इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ऊपर 160 में से मैंने 5 निकाल दिया बाहर। Information on this.
That's all from my side for today. Good night, guys.